Hello friends, my name is Jasveer Kaur. Today I am here to explain your topic forms of business organization. What is the meaning of forms of business organization? These are the legal forms according to which business is organized and run. Legal form means when you register your business organization under any act. मे बी योर पार्टनरशिप एक्ट, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो. कंपनीज एक्ट, इफ यू आर सेटिंग अप योर कंपनी, दिस इज कॉल्ड योर लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और आप उसको प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो. Next is types of business organization. There are three types of business organization. One is your private sector, second is your public sector, and third one is your joint sector. First is private sector. This sector is further divided into two parts. One is non-incorporated, second one is incorporated. Non-incorporated business organizations are those where registration is not compulsory. For example, is your sole proprietorship, partnership, and joint Hindu family business. इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की रजिस्ट्रेशन आपके लिए कंपलसरी नहीं होती है और इनकी लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है. एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड योर नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Second one is your incorporated organization. These are those organizations which are created under the act. You call it a company act. It is further divided into two parts. One is your private companies, second one is your public company. अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको दो टाइप्स में कर सकते हो. इट इज़ योर विश कि आप इसको प्राइवेट कंपनी के नाम से शुरू करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो, पब्लिक कंपनी के नाम से इसको स्टार्ट करना चाहते हो. बट यू हैव टू रजिस्टर योर बिजनेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. Next type is the public sector. Public sector means that organization which is managed and controlled by your government. आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज योर नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड सेकंड वन इज योर इनकॉर्पोरेटेड. नॉन इनकॉर्पोरेटेड मीन्स आपको किसी एक्ट के अंडर इनको रजिस्टर करवाने की नीड नहीं होती है. लाइक योर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जिनको आपके मिनिस्टर्स क्या करते हैं, हैंडल करते हैं. लाइक योर रेलवे डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ योर मिनिस्टर. Next is the incorporated public sector organizations. These are created under the act. For example, like your government company. Government companies are created under the Companies Act 2013. 51% share is with the government. That may be your central government, your state government. Next, in the type of your incorporated are your public corporations. Public corporation. These are those organizations जिनके लिए आपकी पार्लियामेंट क्या करती है, एक्ट पास करती है. Special act is passed by your parliament to create these types of organization. For example, your RBI,
RBI was set up under the Act of RBI Act 1934. आपकी RBI रूल कैसे करेगी, वो कैसे वर्क करेगी, उसकी ड्यूटीज क्या है, ऑल आर रिटन अंडर दिस एक्ट एंड दिस इज कॉल्ड योर पब्लिक कॉर्पोरेशन और योर स्टैट्यूटरी corporation. Last one type is your joint sector, where public sector and private sector both prevail in the economy. वो दोनों क्या करती है, एक पार्टनरशिप में काम करती हैं. Next is the partnership organization. Partnership organization means when more than two persons join their hands willingly to start a business, start a lawful business to share profit and earn maximum profit. Main condition of this organization is there must be more than one person. Minimum 2 members must be there if you want to start a partnership organization. Next, features of partnership organization. One is more than one person. Means minimum आपके पास 2 persons होने चाहिए if you want to start business, and maximum 50%. Always keep in mind, if you want to register your partnership organization, the act is Partnership Act 1932. आप इस एक्ट के अंडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हो, रजिस्टर करवाते हो विद द रजिस्ट्रार. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. Contractual relationship means 2 or more persons enter in a agreement with each other. सबसे पहले वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हम जॉइंटली एक बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. उनका जो मेन एम और मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न होता है और वो एक स्पेसिफाइड रेशियो में क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट को शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 2% रेशियो में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट वन इज इन द 3 रेशियो, तो वो इस रेशियो में क्या करेंगे, अपने टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के बीच. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is unable to pay its debts with the business income, then partners क्या करते हैं, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करते हैं. पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करेंगे to pay that obligation is called your unlimited liability. Means your business assets plus your domestic assets liable होते हैं आपकी obligations को पे ऑफ करने के लिए. नेक्स्ट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. आपको इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना, इट इज नॉट कंपल्सरी. इट्स योर विश कि आप इसके अंडर रजिस्टर करवाना चाहते हो या नहीं. अगर आप अपने इस एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं करवाते हो, मीन्स योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. पार्टनर्स और फर्म दोनों एक ही माने जाते, मीन्स इसकी लीगल एंटिटी नहीं है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लस दे आर द एजेंट ऑल्सो. वो उसके लिए काम करते अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. लाइक इसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, आपके इस एग्रीमेंट में लिखा क्या जाता है. जब आपके पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म
आपकी फर्म का नेम क्या है, वेयर इज अ ऑफिशियल एड्रेस और ऑफिशियल ऑफिस ऑफ योर firm. Next is name and address of the partners. Contribution of capital. If there are two partners, then हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल क्या किया, कंट्रीब्यूट की है. फॉर एग्जाम्पल, मे बी पार्टनर ए इज कंट्रीब्यूटिंग 10,000 and partner B is contributing is 20,000. अकॉर्डिंग टू दिस आप डिसाइड करते हो कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी. लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर. फर्स्ट इज योर एक्टिव पार्टनर्स. एक्टिव पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द बिजनेस, take part in the managerial activities and share profit and loss of that partnership firm. Next is sleeping partner, जिनको आप dormant partner भी कहते हो, who invest their capital, take part in the profit sharing ratio also, but वो आपकी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम स्लीपिंग पार्टनर्स और डॉर्मेंट पार्टनर्स. नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर्स, जिनके बारे में आप पब्लिक को शो नहीं करते हो, बट जो आपके एक्टिव पार्टनर्स की तरह सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो, बट पब्लिकली आप इस पार्टनर को शो नहीं करते हो. Nominated partners are those partners who don't invest their capital, not take part in any managerial activities, but ये सिर्फ अपना नेम देते हैं ड्यू टू दी गुडविल. इनकी रेपुटेशन मार्केट में इतनी अच्छी होती है कि आप इनकी गुडविल के बेस पे क्या करते हो, बिजनेस को अच्छे से रन करते हो, आप उनको अपना पार्टनर बनाते हो. माइनर पार्टनर्स जो 18 ईयर्स से क्या होते हैं, कम होते हैं. योर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज minors can't become partners of the firm, but there is one provision: you can make minor partner as a partner in the firm only in the profits, not in the losses or liabilities. जैसे आपके प्रॉफिट में पार्ट तो ले सकता है, बट जो आपके लॉसेस में या लाइबिलिटीज में आपका माइनर पार्टनर पार्ट नहीं ले सकता है. आई होप फ्रेंड्स आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारा टॉपिक समझ आया होगा. थैंक्स.